Hello, so question is saying this: at 400 Kelvin, the root mean square speed of a gas which having molecular weight is 40 and the speed of gas X is equal to the most probable speed of gas Y at 60 Kelvin. The molecular weight of gas Y is, right? So we have to find out the molecular weight of gas Y. So as we know that the root mean square speed, or you can set VRMS or you can set URMS. I can write here that is URMS, root mean square speed, is equals to under root 3RT by M, under root 3RT by M. This is the formula for root mean square speed. And for the most probable speed, we know that the most probable speed UMP, which is equals to under root 2RT by M, 2RT by M. We here R is our gas constant, T is our temperature, and M is our molar mass, right? So for speed of gas X, let's say for this is our gas X and this is our gas Y, right? So now you can see here we have given the speed of RMS speed of gas X is equal to the most probable speed of Y. That means I can write here I can write this URMS is equals to UMP, or you can write most probable speed. For this I can write like this. Under root of 3RT by M is equals to under root of 2RT by M, right? So this is 2RT by M, right? So this is the molar mass of gas Y and this is molar mass of gas X, right? Now we have to find out the molecular weight of this gas Y, right? So that means we have to find out this My, right? So if we further solve it, so you can write like this, in this way. Here you can see square root cancel both sides, so we'll get here 3RT divided by Mx, which is equals to 2RT divided by M of Y, right? So now you can see here, from here if you further solve it, so here you will get R to R cancel out, right? And we know that we have this temperature, right? So this is the temperature of gas X and this is the temperature of gas Y, right? So we have to find out the molecular weight of Y gas Y, right? So I can write like in this equation like this. So My, that is the molecular weight of gas Y, which is equals to 2 by 3, which is equals to here 2 by 3, right? And this is our, I can write like this. So this is M of gas X, right? So this is the molecular weight of gas X, and this comes down, right? So this comes down T of X, right? And here this comes here, right? So I can write like this, Ty. So now if you further solve it, we'll get here 2 by 3. The molecular weight of gas X is given here, that is 40, right? So that is 40, right? And the temperature we have given, that is 400 Kelvin. So I can write it like this. This is 400, right? And here you can see this, the temperature of the gas Y we have given is, this is 60 Kelvin, right? So this is 60 Kelvin, right? So if you further solve it, so you will get here from 0 to 0 cancel, right? And from this 0 to this 0 cancel, right? And from 4 to 4 cancel, right? So now 3 to the 6, right? So we are getting here the molecular weight of gas Y comes out to be 4, right? So this is the required molecular weight of the gas Y, right? So when the speed of both gas X, that is RMS speed, is equal to the most probable speed of gas Y, right? So in that condition, the molecular weight of gas Y is equal to 4, right? So hope this answered your question. Thank you. Hi, so hello everyone. Let us have a look at this question. So in this question, we are given that the average velocity of the gas molecules is equal to 400 meter per second, and we are asked to find the RMS velocity of the gas molecules, keeping in mind that the temperature remains same. So yeah, let us have a look at the solution. So first of all, let us have a look at the values given to us. We are given that average velocity, or VAVG, is equal to 400 meter per second, and we are asked to find the RMS velocity, that is VRMS, we are asked to find. Now before moving further, let us see the formula of the two velocities. So we know that VAVG, or the average velocity, is nothing but it is equal to under root of 8RT by pi into M. Also, the formula of VRMS, or the root mean square velocity, is under root of 3RT by M. So yeah, these are the two formulas that will be used.
So here T is the temperature, M is the molecular mass, and R is the Rydberg constant. Consider this relation to be number 1 and this relation to be number 2. Now upon dividing 1 divided by 2, we get V average divided by VRMS is equal to, keeping the terms under the under root, square root common, we get 8RT by pi m, and then this m from VRMS will go in the numerator and we'll get m in the top and 3RT in the denominator at the bottom. Then RT in the numerator and denominator will get cancelled. Likewise, m gets cancelled. So we are left with under root of 8 upon 3 pi. So yeah, also we know that the value of V average is already given to us, that is equal to 400 meter per second. So substituting the value, we get 400 divided by VRMS is equal to under root of 8 by 3 pi. Thus VRMS can be calculated from here. That will be equal to 400 into square root of 3 pi divided by 8. On solving, the answer will be 434.14 meter per second. That can 434 meter per second. So yeah, this was the RMS velocity or the root mean square velocity of the gas molecules that we were asked to find. Thank you. I hope the solution is clear. इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस है वो 38 सेकंड्स में एक पिन होल से डिफ्यूज हो रहा है, यानी ये 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस एक पिन होल से 38 सेकंड्स में बाहर डिफ्यूज हो रहा है। एंड दिया गया है उसका प्रेशर है 0.8 एटमॉस्फेयर एंड और एक गैस है अननोन कंपाउंड ऑफ जिनॉन फ्लोराइड, वो 57 सेकंड्स में डिफ्यूज हो रहे सेम पिन होल से। दिया गया है उसका प्रेशर है 1.6 एटमॉस्फेयर। अब हमें कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, वो जिनॉन फ्लोराइड अननोन कंपाउंड ऑफ जिनॉन फ्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। ये सॉल्व करने के पहले हम दो चीज याद रखना पड़ेगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड होता है। सो हमें पता है रेट ऑफ डिफ्यूजन एक प्रेशर पे डिपेंड होता है, एक है रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर पे डिपेंड होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एंड और एक है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। इधर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसका मतलब यह है कि जब प्रेशर बढ़ेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। मान लेते हैं इस पे हम प्रेशर बढ़ा रहे, प्रेशर P बढ़ा रहे, जब प्रेशर बढ़ाएगा इधर से डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। एंड और एक इक्वेशन है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ओवर मास और मॉलिक्यूलर वेट। इसका मतलब यह है कि जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वो कंपाउंड का रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा। सो अब इन दोनों इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि R2 by R1 यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकंड कंपाउंड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल्स टू P2 by P1 into molecular weight of first component by molecular weight of second component whole to the power 1/2। बट हमें पता है रेट ऑफ डिफ्यूजन टाइम पे भी डिपेंड होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब जब रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा टाइम कम हो जाएगा। सो ये रिलेशन से हम बोल सकते हैं कि R2 by R1 इज इक्वल्स टू T1 by T2। सो ये इक्वेशन इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो ये हो जाएगा T1 by T2 इज इक्वल्स टू P2 by P1 into molecular weight of first component by molecular weight of second component whole to the power of 1/2। अब दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे, so therefore squaring on both sides, squaring on both sides। दोनों साइड स्क्वेयरिंग इसीलिए कर रहे कि हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपोनेंट 2 फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर रहे हैं। अब दोनों साइड स्क्वेयरिंग करके इक्वेट करेगा तो हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट निकलेगा
M2 is equals to P2 by P1 into T2 by T1 whole square into मॉलिकुलर वेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब वैल्यूज क्वेश्चन में दिया गया है। देयरफॉर मॉलिकुलर वेट ऑफ अननोन कंपाउंड P2 यानी प्रेशर ऑफ अननोन कंपाउंड क्वेश्चन में दिया गया है 1.6 बाय प्रेशर P1 यानी प्रेशर ऑफ N2 क्वेश्चन में दिया गया है 0.8 एटमॉस्फेयर्स इनटू T2 दिया गया है 57 सेकंड्स बाय टाइम टेकन टू डिफ्यूज इनटू गैस दिया गया है 38 सेकंड्स होल स्क्वायर इनटू मॉलिकुलर वेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इज 28 क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट है N2 नाइट्रोजन। हमें पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट है 14 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 28। अब इसको कैलकुलेट करेगा तो मॉलिकुलर वेट ऑफ अननोन कंपाउंड ऑफ ज़ीनॉन फ्लोराइड निकलेगा 252 ग्राम्स 252 ग्राम पर मोल। सो ये है वो अननोन कंपाउंड का मॉलिकुलर वेट है। क्वेश्चन में दिया गया है अननोन कंपाउंड का फॉर्म है ज़ीनॉन फ्लोराइड। सो हमें पता है ज़ीनॉन फ्लोराइड का फॉर्मेट XeFn ये फॉर्म में रहेगा एंड दिया गया है उसका मॉलिकुलर वेट है 252 ग्राम्स। सो XeFn इज इक्वल्स टू 252 ग्राम्स। अब फाइंड आउट करेंगे ए नंबर ऑफ मोल्स n कितना है। हमें पता है ज़ीनॉन का एटॉमिक वेट है 131 प्लस n इंटू फ्लोरीन का एटॉमिक वेट है 19 इज इक्वल्स टू 252। अब इसको कैलकुलेट करेगा तो n निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल्स टू 6। सो वो कंपाउंड का फॉर्मूला है XeF6। सो ये है फाइनल आंसर। अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी में दिया गया है एक आइडियल गैस है, उसका वेट ऑफ द सब्सटेंस दिया गया है 12 ग्राम्स और हमें बोल रहे टी टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड्स एंड वॉल्यूम V लीटर्स पे उसका प्रेशर हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर एंड हमें बोल रहे सेम वॉल्यूम पे अगर उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड्स बढ़ाएगा तो उसका प्रेशर 10% बढ़ जाएगा। एंड दिया गया है मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस है, वो गैस का मॉलिकुलर वेट है 120 ग्राम्स। अब हमें फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहे टेम्परेचर T कितना होगा एंड वॉल्यूम V कितना होगा। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस हमें पता है PV इज इक्वल्स टू nRT। therefore अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है PV इज इक्वल्स टू nRT। सो ये क्वेश्चन में बोल रहे कि वॉल्यूम सेम रहेगा एंड नंबर ऑफ मोल्स भी सेम रहेगा। आर है गैस कांस्टेंट तो सबको सेम ही रहेगा। सो अब हम बोल सकते हैं कि P1 बाई P2 इज इक्वल्स टू T1 बाई T2 क्योंकि वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स एंड गैस कांस्टेंट आर कांस्टेंट है। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इनिशियल प्रेशर क्वेश्चन में दिया गया है 1 एटमॉस्फेयर बाई प्रेशर P2 क्वेश्चन में दिया गया है 1.1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू इनिशियल टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया गया है T डिग्री सेंटीग्रेड्स। ये डिग्री सेंटीग्रेड्स में है तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस 273 करना है। सो T प्लस 273 तो ये हो जाएगा केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा बाई टेम्परेचर T2 क्वेश्चन में बोल रहे कि टेम्परेचर T2 10 डिग्रीज T1 से ज़्यादा है। सो T से 10 डिग्रीज ज़्यादा है, ये भी डिग्री सेंटीग्रेड्स में है तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस 273 करना है तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया था। अब इसको कैलकुलेट करेगा तो टेम्परेचर T निकलेगा -173 डिग्री सेंटीग्रेड्स। ये डिग्री सेंटीग्रेड्स में है तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस 273 करना है। सो -173 प्लस 273 इज इक्वल्स टू 100 केल्विन। सो टेम्परेचर T हो जाएगा -173 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड्स और 100 केल्विन। कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स कितना है। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट ऑफ द सब्सटेंस बाय मॉलिकुलर वेट, वेट ऑफ सब्सटेंस बाय
मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास दोनों सेम ही है। सो वेट ऑफ द सब्सटेंस क्वेश्चन में दिया गया है 12 ग्राम्स, बाय मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है 120 ग्राम्स। सो इसको कैलकुलेट करेगा तो नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा 0.1 मोल। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है PV इज इक्वल्स टू nRT, एंड हमें फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहे वॉल्यूम कितना होगा। सो वॉल्यूम V इज इक्वल्स टू nRT बाई P। क्वेश्चन में सब वैल्यूज दिया गया है। अब सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स n है 0.1 इंटू R है गैस कांस्टेंट, हमें पता है गैस कांस्टेंट का वैल्यू है 0.0821 इंटू टेम्परेचर T अभी निकला था 100 केल्विन बाई प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। इसको कैलकुलेट करेगा तो वॉल्यूम V निकलेगा 0.82 लीटर्स। सो ये है फाइनल आंसर, वॉल्यूम इज 0.82 लीटर्स।